Today we'll start from the very first chapter, which is units and measurement. So we'll start from the very beginning. And for that, first definition that comes across it is what is a physical quantity? How we define a physical quantity? Then we also discuss units. So physical quantities are those which can be measured. All those quantities which can be measured are called physical quantities. A technical definition है. You should have an idea about what is a physical quantity. All those quantities which can be measured are called physical quantities like length, mass, weight, speed, force, momentum, time, temperature. All these quantities are physical quantities. Then, what are base quantities? ये सबसे important चीज है कि base quantities कौन सी होती हैं? Which are base quantities? These are the quantities which require only one measurement. They are 7 in number. अब वो कौन सी base quantities हैं? It is length, mass, time, current, temperature, amount of substance, and luminous intensity. You should know them all by name. वो आपसे कहेगा कि length, mass, time, these are 3 of the base quantities. What? Give 2 more. तो इन बाकी 4 में से आपने कोई भी 2 दे देंगे. Write down कर देंगे. So you should know all the 7 quantities. Length we know, mass we know, time we know, current, temperature we also know, amount of substance. आपने जो जिन लोगों ने chemistry पढ़ी है, they must have known amount of substance which is measured in moles. और आखिरी quantity जो है, इसको हम luminous intensity कहते हैं. ये थोड़ी नई चीज है. We won't be using this very much in our general calculations. But you should know that this is the 7th base quantity. तो 7 quantities जो है, इनको हम base quantities कहते हैं. इन्हीं के जो base units हैं, इन्हीं के जो units हैं basic, उनको हम base units कहते हैं. यानी जो 7 quantities हमें दी हैं, इनके units को हम बेस यूनिट्स कहेंगे. जैसे कि लेंथ के लिए मीटर है, mass is in kilograms, time is in second, current is in ampere, temperature को हमने केल्विन में मेजर करना है. It is not in degree Celsius, it is Kelvin. Amount of substance को हम मेजर करेंगे मोल में. And luminous intensity is measured in candela. तो ना सिर्फ आपको इन 7 क्वांटिटीज के बारे में मालूम होना चाहिए, बल्कि आपको इनके 7 यूनिट्स जो कंसीडर किए जाएंगे, जिनको हम बेस यूनिट कहते हैं, you should also know what are the base units as well. These are the 7 quantities which we consider as base quantities, and their respective units are called base units. इन 7 quantities के अलावा जो भी quantity है, उसको हम derived quantities कहते हैं. इसको कॉपी कर लीजिएगा. You should know the definition of base quantity, and you should be able to identify the base quantities. You should also know that these are in their base units. अब जब वो आपसे base quantity पूछेगा, तो आपने quantity ही बतानी है, unit नहीं बताना. Similarly, if he asks you about the unit, तो फिर आपने unit बताना है. आपने base quantity का reference नहीं देना. अगर मैं कहता हूँ give 3 base units, तो अगर आप कहते हैं कि mass, kilogram, meter and time,
You will get no mark for that because time is not a unit. अगर आप सेकंड कहेंगे तो नंबर मिलेंगे, अगर आप सेकंड की जगह उसकी क्वांटिटी का नाम ले लेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे. You should know what is a quantity and what is its units. So these are 7 base quantities and these are their respective base units. अब हमने जितने भी यूनिट लिखने हैं उनके अंदर हम सिर्फ इन बेस यूनिट को ही इस्तेमाल करेंगे. And our answer should only include these base units. So, what are derived quantities? Let's see them as well. Just one second. Physical quantities other than the 7 base quantities are called derived quantities as they require more than one measurement. इन 7 क्वांटिटीज के अलावा और जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं बिकॉज दे रिक्वायर मोर देन वन मेजरमेंट या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज जो है उनके अंदर इंक्लूड की जाती हैं. मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है. अब फिर उनके यूनिट कैसे डिराइव किए जाएंगे? दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम देयर रिलेशनशिप between the derived quantities and the base quantities. जो भी उनका रिलेशनशिप है, फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम उनके यूनिट्स को डिराइव करेंगे. तो दिस इज हाउ वी डिफाइन derived quantities, जो उन 7 quantities के अलावा all the quantities are derived quantities. और उनके यूनिट ड्राइव करने के लिए वी मस्ट नो देयर फॉर्मूला इन विच बेस क्वांटिटीज आर गिवन इन सम रिलेशनशिप. उस रिलेशनशिप को यूज करके वी कैन डिराइव देयर यूनिट्स. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एरिया कहता हूं, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. बोथ आर लेंथ्स. तो एल मल्टीप्लाई बाय एल करें, आपका आंसर मीटर स्क्वायर आएगा. या अगर आप पाई आर स्क्वायर यूज कर रहे हैं, पाई हैज नो यूनिट, आर स्क्वायर मींस मीटर स्क्वायर. तो विच एवर फॉर्मूला यू नो, यूज दैट फॉर्मूला, put the base quantities units in that formula and you will get the value of the derived quantity. So area can be found by L into L या pi r square. In both cases you get the same answer, meter square. Volume, length multiply by breadth multiply by height. ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है. But volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube. If I use this formula, even then the unit that I get is meter cube. So whichever formula you use, you get the same answer. Okay, I'll solve some of the quantities on board now. Just wait. So हमने वॉल्यूम निकाल लिया था. अब देखते हैं कुछ और क्वांटिटीज. डेंसिटी. व्हाट इज डेंसिटी? द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज mass over volume. Mass is measured in kilograms and volume is measured in meter cube. So my formula for density becomes dry quantity becomes kg divided by meter cube. आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर इसको m क्यूब को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो साइन विल बी रिवर्स्ड, kg पर मीटर क्यूब. दिस इज साइंटिफिक नोटेशन. तो आप उसको kg डिवाइड बाय मीटर क्यूब लिखेंगे तो भी ठीक है, और -3
ऊपर लेके जाएंगे तो वो -3 बन जाएगा, तो वो आंसर भी करेक्ट कंसीडर किया जाएगा. सो इट डज नॉट मैटर व्हिच यू आर राइटिंग डाउन. वेलोसिटी is displacement divided by time. Displacement is in meter, time is in seconds. So meter divided by second या ms -1. s -1 हो जाएगा जब वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा. एक्सेलरेशन, rate of change of velocity. Velocity divided by time, change of velocity divided by time. Change velocity का मतलब होता है velocity होगा ना उसकी यूनिट. तो ये बन जाएगा मीटर s-1 डिवाइड बाय s. अब s-1 जो है, अगर हम s को ऊपर लेके जाएं तो -1 बन जाएगा, और s-1 इंटू s-1 क्या बन जाता है, मीटर s-2. इस तरीके से आप जो यूनिट सिमिलर है उनकी पावर्स को सिंप्लीफाई करें. व्हाट अबाउट फोर्स? F is equal to ma. एक्सेलरेशन अभी निकाली है हमने. It is kg multiplied by acceleration which is meter per second square. इस तरीके से आपने फोर्स को न्यूटन भी लिखना है. तो फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं जो इसके SI यूनिट है, मगर हमने फोर्स को बेस यूनिट्स में जो है वो लिखना है. इसलिए ये बन जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m इन किलोग्राम आता है, और एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है. इसी तरीके से एक और क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम. मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल p जो है वो मास इनटू वेलोसिटी होती है. In this case, the unit will be kg meter per second, mass in kilograms, and velocity is in meter per second. So multiply कर ले and you get the formula for momentum as meter kg meter per second. अब यहां पे मैं एक और चीज बता दूं कि force is also defined as rate of change of momentum, mv minus mu over t. ये फोर्स का एक और फॉर्मूला है जो हम पढ़ेंगे आगे डायनेमिक्स में. और बाय डेफिनेशन फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब देखिएगा क्या इस फॉर्मूले को यूज करके हमारे पास फोर्स के यही यूनिट आते हैं. सो ऊपर आ रहा है मोमेंटम, चेंज मोमेंटम भी मोमेंटम ही बनेगा, इसलिए ये बन जाएगा kg मीटर पर सेकेंड. इसको डिवाइड करें सेकंड के साथ, चेंज मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, और अगर मैं s को ऊपर लेके जाऊं तो ये बन जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब नोट कीजिएगा कि F इज इक्वल टू ma लगाएं या F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगाएं, दोनों के यूनिट सेम आ रहे हैं. इस तरीके से आपको अगर करेक्ट फॉर्मूला मालूम है तो कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर. ये कॉपी कर लीजिए. और उसके बाद आपने मुझे बताना है व्हाट इज द यूनिट फॉर इंपल्स ऑफ अ फोर्स. इंपल्स, इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, F इंटू टी.
F इंटू टी को इम्पल्स कहते हैं, जो आप एम वी माइनस एम यू से भी निकाल सकते हैं. सो व्हाट इज द यूनिट फॉर इम्पल्स ऑफ अ फोर्स? ओके, बिल्कुल सही, केजी मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. वो क्यों? बिकॉज नोट कीजिएगा, फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड. मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं सिर्फ डॉट लगाता हूं, और राइट साइड पे तो वैसे मोमेंटम है केजी मीटर पर सेकेंड. अब देखिए यहां पे s माइनस टू लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय s पावर 1. बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड. तो यहां पे भी हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड बन जाएगा. तो इस तरीके से इफ यू नो द फॉर्मूला, आप वो फॉर्मूला इस्तेमाल करके अपना आंसर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज वर्क. व्हाट इज द यूनिट फॉर वर्क? वर्क के लिए हमें इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ इंटू डी. फोर्स हमने निकाला है पहले, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो फोर्स आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस के साथ, मीटर. ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. इस तरीके से आपने वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकालना है. वैल्यूज पुट करें एंड गेट द आंसर. अब मैं आपको दो फॉर्मूलाज और दे रहा हूं. एक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, एम जी एच. इन फॉर्मूलाज को यूज करके फाइंड योर यूनिट्स फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. वैसे तो एनर्जी हम जाउल में कैलकुलेट करते हैं, मगर अगर आप जाउल लिखेंगे you will get no mark, because joule is not a base unit, it is SI unit. जब भी वो आपसे कहता है फाइंड द यूनिट, वो आपसे बेस यूनिट मांग रहा होता है. क्लियर? सो फाइंड द बेस यूनिट फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. राइट योर आंसर्स. मैं आपको दिखाता हूं उसके आंसर्स. मीटर स्क्वायर एस माइनस टू, हाँ वो ठीक है, के जी एम माइनस टू एम स्क्वायर और एस माइनस टू, दे आर द सेम यूनिट एज वर्क एंड ऑल्सो फॉर पोटेंशियल एनर्जी. मगर इसको बाकायदा आपने सॉल्व करना है. ये देखिएगा, mass is in kilograms, v स्क्वायर मीटर पर सेकेंड को आपने स्क्वायर करना है. तो ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर एस माइनस टू. इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी केजी, G stands for acceleration due to gravity. It is acceleration. Acceleration is meter per second square. Meter per second square multiplied by height. Height is also in meters. So we get kg m square s minus 2. Same unit. All the three quantities work. Kinetic energy, potential energy, all of them have the same unit because basically they all are measured in joules. So they all have the same units. Okay, I give two more quantities. Let's see if you can find the answers. The first quantity is
Power. Power is work over time या energy over time. And the second one is pressure. Pressure is force over area. आप इन दोनों यूनिट निकालने हैं. Then we have another quantity which we call as stress. ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. इसका फॉर्मूला भी फोर्स ओवर एरिया है. ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. Then we have another quantity called strain. ये दोनों क्वांटिटी एक्सटेंशन ओवर लेंथ. ये हम डिस्कस करेंगे जब हम इलास्टिसिटी का चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे. वहां पे ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आएगा. और वहां पे एक और क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं यंग मॉड्यूलस. ये हम डिस्कस करेंगे. और यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन. और इसका मतलब है फोर्स ओवर एरिया डिवाइड बाय एक्सटेंशन ओवर लेंथ. ये 5 क्वांटिटीज है. ट्राई टू फाइंड देयर आंसर्स एंड देन आई विल गिव यू आंसर्स. वर्क ओवर टाइम. वर्क को निकालना मैंने. केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड. अब आप मालूम चाहिए वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस. ये कैलकुलेट किया हुआ है. फोर्स इनटू डिस्टेंस. अब ये एस ऊपर जाएगा. ये बन जाता है केजी मीटर स्क्वायर एस -3. So power is kg meter square s -3. हाँ बिल्कुल सही. प्रेशर. यूनिट फॉर प्रेशर kg m-1 s -2. Okay, let us see. Force kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर. अब ये मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है. जब ये ऊपर जाएगा तो ये एक्सटेंशन इज लेंथ. एक्सटेंशन मींस लेंथ. तो ये ऊपर जाके -2 बन जाएगा. तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं. देखिए यहां से m का स्क्वायर कट गया. m डिनोमिनेटर में है तो ये चला जाएगा kg m-1 s -2. ये मेरे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ गया. स्ट्रेस. अब नोट कीजिए स्ट्रेस की वही चीज ऊपर लिखी हुई है. kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर. जैसे वो सिंप्लीफाई हुआ है. मीटर से स्क्वायर कट गया. What do we get? Same answer. So stress and pressure have the same unit. Strain, extension. Extension is length. And length is also in meters. Meter divided by meter cancels out. So it has correct no units. Because if all the units cancel out, then that quantity has no units. Young modulus. अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया हुआ है. यंग मॉडुलस को आमतौर पे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर मैं इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करूं
तो ये बन जाएगा F इंटू एल ओवर E इंटू ए। सिंप्लीफाई, फाइंड द यूनिट। जी क्या बोला यूनिट इसका? केजी, एक मिनट, 1 सेकेंड, केजी एस m माइनस 1 s माइनस 2, करेक्ट। बिकॉज नोट कीजिएगा फोर्स आपके पास आएगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ आएगा मीटर के अंदर, एक्सटेंशन भी मीटर में आ रही है और एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये मीटर तो मीटर वैसे ही कट गया और ये स्क्वायर ऊपर जाके -1 होगा, या ये मीटर स्क्वायर को यहां पे काट देगा एंड वी गेट के जी m -1 s -2। इस तरीके से आप क्वांटिटीज के यूनिट जो है वो डिराइव कर सकते हैं, इनको डिराइव यूनिट कहते हैं। अब मैं कुछ और यूनिट लिख रहा हूं, फाइंड इट योरसेल्फ एंड देन विल डिस्कस। जस्ट 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1 ओवर टाइम पीरियड। चार्ज Q इज इक्वल टू IP। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको मैं स्मॉल q से रिप्रेजेंट करता हूं। अगर याद हो तो हमारा फॉर्मूला होता था एनर्जी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, वेयर डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर। तो यहां से हमारे पास C का फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी डिवाइड बाय m डेल्टा थीटा। और इसके अलावा आपने निकालना है यूनिट फॉर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एनर्जी डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम। Find their units and then I will give you the answer. फिर आप उसको अपने आंसर को चेक कीजिए, बट पहले खुद सॉल्व करें। डोंट कॉपी डाउन, फर्स्ट राइट योरसेल्फ, राइट योर आंसर्स। Okay, let's see the answers. Frequency 1 over second, second inverse. Charge ampere second, current is in ampere, time is in seconds. Specific capacity energy over m delta theta। एनर्जी के लिए मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है F इंटू डी, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एनर्जी की जगह आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय मास डिवाइड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर इज इन केल्विन। तो यहां से kg से kg कैंसिल आउट हो गया, मीटर स्क्वायर s -2 केल्विन -1। बिकॉज केल्विन को जब ऊपर लेके आएंगे तो वो केल्विन -1 बन जाएगा। इंटेंसिटी एनर्जी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर, टाइम is in seconds। यहां से m स्क्वायर से कट गया एंड यू गेट द आंसर एज kg s -3।
So these are some of the quantities, derived quantities which we have considered and found their units. तो इंशाल्लाह tomorrow we'll do some more units. इधर practice कर लीजिएगा दोबारा देख लीजिएगा, so that you are able to solve them easily. ठीक है? कल इंशाल्लाह we will be doing some more base quantities and then we'll proceed with the chapter itself.